ठीक है. All right, guys. So recording has started. Today's agenda is previous year questions for topic number 10, paper 1, section 2. That is party system, national regional political parties, ideological and social basis, patterns of coalition politics, pressure groups, trends in electoral behavior, and changing socio-economic profile of legislators. तो ठीक है, हर टॉपिक पे एक एक दो दो क्वेश्चन है बेसिकली. आई गेस अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन है इसमें. थोड़ा जल्दी करेंगे आज, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. इट्स ऑलरेडी टू लेट. ठीक है. All ओके. right. तो पहला क्वेश्चन है इनएडिक्वेट इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के बारे में. वो किसी ने लिखा नहीं है तो बाद में करते हैं. एनालाइज चेंजिंग नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम. देखते हैं पहले लिखा है कि नहीं यार. ठीक है, इस पे लिखा हुआ है प्रज्वल ने. कोई पढ़ सकता है कि इसको? ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ. हाँ. क्वेश्चन नंबर 2. Okay. Am I audible to everyone? आई ठीक है. कैन हियर. Yes. Okay. So question है कि analyze the changing nature of party system in independent India and how has it changed in contemporary times. 20 मार्कर्स में. तो प्रज्वल लिखते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस वन पार्टी डोमिनेंस वर्सेस मल्टी पार्टी रजनी कोठारी calls Congress party as Congress system. First, for general election, Congress had absolute majority till 1967, a dominant force with vote share never exceeding 48%. However, seat-wise majority was comfortable enough. फिर लिखते हैं after 1967, non-Congress parties have gave serious competition. CPI in Kerala 1957 election. 1960s Socialist Party left. Jan Sangh Republican Party of India threatened one-party system. फिर 8 states Congress loses power by 1967. End of single party dominance system वो बता रहे हैं. फिर 1967 से 89 के बीच में इमरजेंस ऑफ नॉन कांग्रेस parties, leaders farming and backward communities. Congress tried Mandal Commission. फिर significant event in is bipolarization of political parties happened in states. AP Congress versus regional party मध्य प्रदेश राजस्थान आंध्र प्रदेश हो गए. MP राजस्थान बिहार एक्सेट्रा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस. 1969 में split in Congress, student movement led by JP, Indira Gandhi and public institution erosion all led to decline of Congress. Two-tree Congress बता रहे. 1977 emergency, first time a challenge to Congress at central level by Janata Party, formed by merger of 5 parties और new era बता रहे. 1984 Indira Gandhi assassination, Congress peaked again. वही राजीव गांधी को majority गवर्नमेंट मिली. BSP emergence, Dalits and marginalized rallied. Support base of Congress was eroded. वो टूट गया. 1989 जनता दल led coalition National Front formed the government. 1989 में coalition politics since 1989. फिर ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी थी इसी समय पे. इंटेंसिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स चेंज द पार्टी सिस्टम. राइवलरी बिटवीन नेशनल पार्टीज टू अलायंसेस टू रीजनल पार्टीज. ठीक है. Since 1989 कोलेशन अ पैटर्न प्री एंड पोस्ट इलेक्टोरल अलायंसेस. वो पहले ही अगर हो जाता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बना लेते हैं. 1996 में 13 पार्टीज नॉन बीजेपी फ्रंट फॉर्म द यूनाइटेड फ्रंट. फिर एच डी देवेगौड़ा और उसके बाद इंदर कुमार गुजराल SPMs 1996 से 97 और 98. फिर उसके बाद 99 में बीजेपी कोएलिशन NDA. 2004, 2009 and 2014 several party alliances. Since 2004 two-party center stage system, one led by Congress and other by BJP. Other parties took one side or the other mostly. Parties out of this form the third front. अब बता रहे हैं 2014 से 19 के बीच में बीजेपी रिपीटेड थम्पिंग मेजॉरिटी विच वाज लास्ट सीन बाय कांग्रेस ड्यूरिंग इंदिरा एरा. द वन मैन शो पॉलिटिक्स लेड बाय इंदिरा और नेहरू look like to have appeared back with emergence of Modi factor. Individual charisma coupled with social engineering backing backward classes and marginalized
while consolidating upper caste vote base seems the strategy. बहुत बढ़िया. Yogendra Yadav beyond India's third party system, return of the hegemon BJP, ऐसा लिख रहा है. फिर low inflation was a boon for BJP to return back to power in 2019. BJP expanding beyond geography and eating up new places at the expense of Congress. However, BJP numbers still do not provide enough for it in Rajya Sabha for a majority. अब तो हुई है. With 2024 elections on the side, parties like TMC are expanding and want a third port out which is not Congress and non-BJP with complete local parties. देखते हैं. Third party system between 1989 से 2009, no central party system, era of political fragmentation and political system fertilized. ये बता रहे हैं क्वेश्चन में चेंजिंग नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम में. आई थिंक बहुत ब्रॉडली लिखा है क्वेश्चन. Others, सर हैं यहाँ पे? I'm here. What do other people think about this answer and the question? यस यस. अच्छा, एक चीज मुझे मिसिंग लग रही है, वो है डेफिनेशन ऑफ पार्टी सिस्टम. आई थिंक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पार्टी सिस्टम बोला है, तो किसने दिया है, कौन से स्कॉलर ने पार्टी सिस्टम डेफिनेशन दिया है, क्या है वो? सर्टोरी? आई थिंक रजनी कोठारी और योगेंद्र यादव और रजनी कोठारी बताते हैं पार्टी सिस्टम का. सर्टोरी है ना यार ये तो एक. अच्छा, साइटोरी का वो सिस्टम वाला. एक मिनट. हाँ, मतलब सर्टोरी बोलते हैं पार्टी कंसिडरेबल वोट्स सिस्टम depends on number of parties of systemic relevance and not the number of political parties. हाँ, यस यस तो यस. इससे स्टार्ट कर सकते हैं, इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं. और कौन सा, और कोई है क्या पार्टी सिस्टम के बारे में? एडमंड बर्ग भी है ना. क्या बोला उन्होंने पार्टी सिस्टम के बारे में? वो तो पॉलिटिकल पार्टी क्या बोलते हैं वो. ओके ओके. हाँ, सिस्टम तो यार एक मिनट यार. ठीक है फिर. हाँ, एडमंड बर्ग ने पॉलिटिकल पार्टी को बोला है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल with a shared ideology for the pursuit of common interest. यस यस. ठीक है, मतलब आई थिंक इंट्रो में कीवर्ड जो मैंने भी लिखा है आंसर में. हाँ, तो इंट्रो में आई थिंक दोनों भी डाल सकते हैं, बर्ग को भी एंड सर्टोरी दोनों को डाल सकते हैं इसमें, एंड देन वी कैन गो ऑन टू एक्सप्लेन द जो भी आंसर में था वो पूरा. और क्या क्या मिसिंग लग रहा है आंसर में, बताना जरा. एक मुझे मिसिंग लग रहा है यार, जो कांग्रेस सिस्टम, बीजेपी सिस्टम, जो आई थिंक रजनी कोठारी बोलते हैं, फिर योगेंद्र यादव बोलते हैं ना. हैंसन का भी बात है ना, राइज ऑफ क्या बोलते हैं, बीजेपी सिस्टम, सैफ्रॉन वेव. सैफ्रॉन वेव. और कोई एक फीमेल इसको बाद में सुभाष पालासीकर भी बोलते हैं. हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो. जी जी. हाँ, तो थॉमस ब्लॉम हैंसन का जो है सैफ्रॉन वेव बुक है, उन्होंने क्या बोला है? थॉमस हैंसन उन्होंने बोला है कि लोअर कास्ट ओबीसी मोबिलाइज हुए हैं, डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एंड एमॉर्फस मिडिल क्लास राइज हुआ है, एंड ऑन द बैकड्रॉप ऑफ नेशनलिज्म, कल्चरल प्राइड, बीजेपी इज राइडिंग सैफ्रॉन वेव, ऐसा कुछ है. सैफ्रॉन वेव से नया फिर से वन पार्टी सिस्टम से कनेक्ट करना है ना ये एक्चुअली. हाँ, सैफ्रॉन वेव से ही इसको पावर मिला है वन पार्टी सिस्टम बनने का. राइज ऑफ लाइक, और डेडिकेटेड वो है ना, आई थिंक क्या कैडर बेस्ड सिस्टम इनका. इनका पहले वो था, आई थिंक अम्ब्रेला बेस्ड सिस्टम था वन पार्टी सिस्टम का, उनका कांग्रेस का, मगर इनका कैडर बेस्ड सिस्टम है. ये डिफरेंस है.
बीजेपी सिस्टम कौन बोलता है? सुभाष पालेकर। एंड उनके पहले कांग्रेस सिस्टम किसने बोला था? रजनी कोठारी। ठीक है, वन पार्टी सिस्टम भी उन्होंने बोला होगा फिर। मॉरिस जोन्स। ओके, ऑसम। ये आई थिंक थोड़े मिसिंग कीवर्ड ये लग रहे थे, और बताओ सुभाष बाकी। पालेकर सीकर। हाँ, मैं वो बताता हूँ कि सुभाष पालेकर ने प्रेजेंट स्टेटस भी बताया कांग्रेस का, डेड बोल दिया उन्होंने। हाँ, लैक ऑफ आइडियोलॉजी करके। अच्छा, आइडियोलॉजी उनके हाँ, पास रहा नहीं है। और उन्होंने माइनॉरिटी और अलग से कांग्रेस को फेज में डिवाइड करा है। ठीक है। और इसी के ऊपर योगेंद्र यादव ने एक बुक या आर्टिकल भी लिखा था कि व्हाई कांग्रेस मस्ट डाई। बट ठीक है, आई थिंक विल कम बैक टू द क्वेश्चन पार्टी सिस्टम के बारे में। एनी अदर इनपुट्स? Have any other inputs to give on this question? No. वो थॉमस ब्लूमहेंसन ये भी लिखते हैं कि राइज ऑफ बीजेपी इज नॉट अ रिलीजियस फिनोमेना, इट इज प्योरली पॉलिटिकल फिनोमेना। और ये भी लिखते हैं कि जो आज का प्रेजेंट बीजेपी का जो हेजेमनी है स्ट्रॉन्गर देन द हेजेमनी ऑफ कांग्रेस है, जब था। क्योंकि मिर्जा गोपाल जयाल के टर्म्स में बीजेपी हैज रिडिफाइंड द सोशल कल्चरल एंड मोरल टर्म्स। यहाँ तक कि उसी एजेंडा में एकोमोडेट हो रहा, मतलब कांग्रेस भी डील कर रहा है, एजेंडा नहीं सेट कर पा रहा। तो आज का डोमिनेंट पार्टी सिस्टम ऐसे हो गया है। और किन्हीं ने बोला, याद नहीं है कहाँ बोला, बीजेपी भी रेनबो पार्टी सिस्टम जैसा होता जा रहा है। उनके में डिफरेंट रीजन, डिफरेंट क्लास, डिफरेंट कास्ट ऐसा आता है। क्रिस्टोफर जेफरलो का थोड़ा सा हार्ड टोन है, कैसे होगा, इंडिया हैज बिकम डिफैक्टो हिंदू राष्ट्र। चंडोके का किसी को याद है तो बोल दो। क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन था, आई थिंक। नहीं, पार्टी सिस्टम के बारे में बोल रहा हूं मैं। वो कहती है कि री इमर्जेंस ऑफ वन पार्टी dominant system with BJP system replacing the Congress system. However, this one party system is radically different from the umbrella like Congress. BJP is more ideologically oriented with a disciplined cadre. क्या? हेलो 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 हेलो। यस सर, क्लियर सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर लो एक बार ये। पढ़ता हूँ। Comment on marginalization of the left ideology in India. Owing to the left's active involvement in the anti-colonial struggle, the ideology of the left acquired mass appeal to the extent that Communist Party of India and its later offshoots became the face of left politics in the country. But the decline of left is an old story, according to Praful Bidwai. ठीक है? From being the largest opposition party against Congress in 1951, it has dwindled to a token presence in Indian Parliament with only 5 Lok Sabha seats in 2019 election. Even in state assemblies of West Bengal, Tripura, and Kerala, its attempts to pursue industrialization resulted in a backlash.
with the left front losing its credibility as it lost support from three of its fundamental constituencies, the peasants, tribals, and the Muslims. Their decline of left front can be attributed to the confusion among Communist Party, as some believe in parliamentary politics like CPIM and ML, and others believe in revolution, CPI Maoist. Prabhat Patnaik attributed the decline of left to a deep-seated process of empiricization, which is left's rejection of the communist goal of defeating capitalism. Hiren Gohai attributed the decline of the left to the non-revolutionary approach to parliamentary democracy, along with change in the class character of the party, which explained its alienation from the masses. Kripa Shankar argued that the reason why people considered the left front relevant was that they did not see it as very different from any other bourgeoisie party. Similarly, Arup Baisya added that the left must now be considered a ruling class party. The task of reinventing the left can come to fruition only when they urge to reclaim the political takes precedence over the immediate electoral success. The political is the field within which social groups are shaped by institutions, norms, culture, and ideology constituting deeper opinions and values. Rajat Roy बोलते हैं. According to Prakash Karat, the neoliberal regime globally have fostered identities based on religion, ethnicity, and race, and the right wing has made this the basis of their identity politics and sectarian nationalism. ठीक है. Taking cognizance of the right wing hegemonic discourse, the left has to build a political field that is inclusive of the multiple identities constructed along the lines of class rather than religion. Irfan Habib stresses on the need to move to move with the times, as it is important for the left to change its slogans. He gives example of the fight against landlordism, which had helped the left to make inroads among the people in the 1950s and 60s. Similarly, today it is the fight against Hindutva politics and big corporate. Praful Bidwai opined that left should leave electoral politics and go for transformational politics. It should start from where it has left. The Kisan Long March of 2018 from Nashik to Mumbai, organized under the banner of All India Kisan Sabha, a mass organization of the CPIM, brought the issue of agrarian distress facing the farmers to the fore. Further, the workers and peasants marched in Delhi in September 2018, agitation of the accredited social health work activist ASHA, and Anganwadi workers in Karnataka in January 2018, and the All India Workers General Strike in early January 2019 were all organized by the trade unions. And peasant and agricultural workers platforms of the left. The Kisan mobilizations in Rajasthan by the All India Kisan Sabha in February-March 2018, and the Women's Wall for Gender Justice across Kerala in January 2019 are also remarkable examples of mass mobilizations, which signify that left has not died yet. सब कुछ लिख दिया, कुछ नहीं छोड़ा. That's all. लिए एक बार हिंदी में समझा भी दो यार. मैं भूल गया क्या क्या पढ़ा, इसलिए तो बोल रहा हूँ, फिर से एक बार समझा दो, देखते हैं सीक्वेंस में. बहुत लिखा इन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा. ठीक है, देखता हूँ. मतलब इसमें से अगर स्कॉलर्स याद भी नहीं रहे ना तो कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट कीवर्ड्स एंड मेन आइडियाज तो याद रख सकते हैं ना. हाँ, इसमें बोलते हैं कि एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया तो ठीक है, उसके कारण ये मास इनका कैरेक्टर आया, मास अपील आया, और लेटर ऑफ शूट्स इनके आए जो कि फेस लेफ्ट पॉलिटिक्स के फेस बने इंडिया में. लेकिन बट द डिक्लाइन ऑफ लेफ्ट इज एन ओल्ड स्टोरी, ये पुराना स्टोरी है. ये प्रफुल्ल बिदवाई बोलते हैं, ये बाद में बताते भी सोशल मूवमेंट की तरफ बढ़ो आगे. मैंने जहाँ से छोड़ा है लेफ्ट किया वहीं से शुरू करो. फिर है कि 1951 में सबसे बड़ी अपोजिशन थी, अब 2019 में टोकन प्रेजेंस आ गया. फिर है कि वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, केरला में भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के चक्कर में वहाँ भी इनका जो 3 जो सपोर्टर्स थे, पीजेंट, ट्राइबल्स, मुस्लिम, वो भी छोड़ गए. देयर डिक्लाइन ऑफ लेफ्ट फ्रंट कन्फ्यूजन भी हो गया है कम्युनिस्ट पार्टी के अमाउंट. कुछ बोलते हैं पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, कुछ बोलते हैं रिवॉल्यूशन में, जैसे कि सीपीआई मार्क्सिस्ट एंड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बोलते हैं पार्लियामेंट्री करो, मार्क्सिस्ट बोलते हैं हम तो रिवॉल्यूशन करेंगे. हाँ, प्रभात पटनायक बोलते हैं कि ये डीप सीटेड प्रोसेस ऑफ इम्प्रिसाइजेशन है, जो कि लेफ्ट का रिजेक्शन हो गया कम्युनिस्ट गोल ऑफ डिफीटिंग कैपिटलिज्म. ये पता नहीं क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोले जा रहे हैं. प्रभात पटनायक ने क्या बोला नहीं समझ में आया. हिरेन गोहाई एट्रीब्यूटेड उसको करते हैं कि ये रिवॉल्यूशनरी अप्रोच से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में चले गए, इनका क्लास कैरेक्टर ही चेंज हो गया.
तो ये मास से एलियनेटेड हो गए। कृपा शंकर बोलते हैं कि लेफ्ट फ्रंट रिलेवेंट इसलिए हो गया क्योंकि वो अब सभी बर्जुआजी पार्टी से डिफरेंट नहीं रहे, उसी के जैसे हो गया। अरूप वैश्य बोलते हैं कि लेफ्ट पार्टी भी अब रूलिंग क्लास पार्टी हो गई है। कुल मिला के ये मेन स्ट्रीम हो रहे हैं। टास्क अब आगे आते हैं टास्क पे कि रीइन्वेंटिंग कैसे करेंगे, तो व्हेन क्यों होना चाहिए, तो कैन कम टू फ्रूटिशन ओनली व्हेन कम कब आएगा, तो अगेन रिक्लेम द पॉलिटिकल स्पेस मीन्स इट शुड पॉलिटिकल रिक्लेमेशन शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर इमीडिएट इलेक्टोरल सक्सेस, क्योंकि पॉलिटिकल में ही वो पॉलिटिकल इज द फील्ड जहाँ पर सोशल ग्रुप्स आर शेप्ड बाय इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स, कल्चर एंड आइडियोलॉजी कॉन्स्टिट्यूटिंग डीपर ओपिनियंस एंड वैल्यूज। ये रजत राय बोलते हैं, यानी कि अब इनका रिवाइवल पे बात कर रहे हैं। रजत राय बोल रहे हैं कि अब थोड़ा वहाँ पर जाओ, पॉलिटिकल स्पेस में अपना स्पेस बनाओ। प्रकाश करात जो खुद ही उनके हैं, तो वो बोल रहे हैं कि न्यू लिबरल रिजिम जो ग्लोबली है, उन्होंने रिलीजियन, एथनिसिटी और रेस बेस्ड आइडेंटिटीज क्रिएट कर दी। तो इससे क्या हुआ कि राइट विंग ने उसके आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और सेक्टेरियन नेशनलिज्म पे फोकस कर दिया। तो ये राइट विंग के हेजेमोनिक डिस्कोर्स को कॉग्निजेंस में देखते हुए लेफ्ट को भी बनाना पड़ेगा इस तरह का इंक्लूसिव एंड मल्टीपल आइडेंटिटी कंस्ट्रक्टेड अलोंग द लाइंस ऑफ क्लास रादर देन रिलीजन। अब ये चाहते हैं कि क्लास पे ऐसे करे, रिलीजन पे बेस नहीं करे। इरफान हबीब बोलते हैं कि नीड टू मूव विद द टाइम्स एज इट इज इम्पोर्टेबल टू चेंज इट्स स्लोगन्स। क्या क्या बोल रहे हैं? गिव द एग्जांपल ऑफ फाइट अगेंस्ट लैंडलॉर्डिज्म which had helped the left to make inroads among the people 1950-60s. Today's fight against हिंदुत्व पॉलिटिक्स एंड बिग कॉर्पोरेट। ठीक है, उस टाइम वो लैंडलॉर्डिज्म के खिलाफ जो नारा लगाए थे, आज हिंदुत्व पॉलिटिक्स और बिग कॉर्पोरेट्स के खिलाफ नारा लगाने की जरूरत है। प्रफुल्ल विद्वाई बोलते हैं कि जहाँ से लेफ्ट किए थे वहीं से स्टार्ट करो, ट्रांसफॉर्मेशनल पॉलिटिक्स। और आगे एग्जाम्पल्स है कि अभी भी ये रिलेवेंट है, इनके बैनर के तले अच्छे खासे हो रहे हैं, जिसमें किसान लॉन्ग मार्च 2018 का नासिक है, आशा का है, आंगनवाड़ी वर्कर का है, फिर किसान मोबिलाइजेशन राजस्थान में ऑल इंडिया किसान सभा है, फिर जेंडर जस्टिस वॉल अक्रॉस केरला है, ये सब है। दैट्स ऑल। तो मैंने भी आंसर लिखा था, लेकिन वो किसी और ग्रुप पे है, मतलब आप ही लोग के ग्रुप में है, पर मैंने और डाला था, यहाँ तो नहीं है। अच्छा, वो ग्रुप पे है वो। हाँ जी सर। सिंह इज हाँ, किंग, आपने जो लिखा है उसमें यूनिक पॉइंट जो है बता दो। मैं पढ़ देता हूँ यदि होगा, जैसे तो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है यूनिक। हाँ, उनको यदि पता चले तो यूनिक पॉइंट। अच्छा, वहाँ लिखा हुआ है, इनका लिखना है कि पहली बार ठीक लिखा है ठीक है, आपको अप्रिशिएट करते हुए पढ़ता हूँ इसे। ये लिखती हैं कि इन 1952 इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस द अनडिवाइडेड CPI had 22 seats alone. Now reduced to single digit in parliament, the country's two main communist parties CPI and CPIM face existential crisis. ठीक है। Historian Irfan Habib considered 1996 was most crucial year for the Indian parliamentary left. Veteran leader Jyoti Basu was offered the post of PM, but 2009 changed the course of party left, which backed Congress-led UPA government withdrew support to it, objecting to Indo-US nuclear deal that the government was working on. In the election followed, the left's number fell drastically. Okay. Low performance and development of Communist Party ruled state became one of a significant reason of downfall. Leftists also failed to assess the fifth and sixth generation of industrial revolution. Indian economy tilted towards nationalization and socialism also became a reason for marginalization of left. However, Prabhat Patnaik disagrees about global demise of the left. He quotes the example of Jeremy Corbyn, MP of UK, has a huge base in Britain. Left demand the reunification of the communist movement and reworking of strategies and re-engaging of activities, re-energizing of activities. Left should recognize agrarian distress along with unity of workers and peasants. हाँ ठीक है, लास्ट में सॉल्यूशन ठीक है, लेकिन उन्होंने ना फोकस कर दिया थोड़ा इंडिविजुअल इवेंट्स पे, तो मार्जिनलाइजेशन एग्जाम्पल पे फोकस कर दी। उनको थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव भी देना था स्कॉलर्स को हिसाब से, स्कॉलर ना याद आए तो उनका स्टेटमेंट ही लिख दूँ।
वैसे दोनों भी आंसर्स काफी बढ़िया है। सेकंड वाले में काफी समझने जैसा कंटेंट है। पहले वाला तो पूरा बुकिश लग रहा है, एकदम कहीं से उठाया हुआ काइंड ऑफ। वो भी उनको भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उन्होंने सारे एक जगह ले आए और अच्छे से लाइन से लाके कलेक्ट किए, वो एक नोट्स बन गया नहीं वो। हाँ, बहुत ही बढ़िया बना है मतलब, लेकिन यार वो वही कॉम्प्रहेंशन करना बहुत मुश्किल है। हाँ, उतना वो रिप्रोड्यूस नहीं होगा एग्जाम में, बट हाँ कंटेंट वाइज जो वेरी कॉम्पैक्ट है। इनका ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम्पल ठीक है, शानदार है, इवेंट दिया, लेकिन थोड़ा सा इनको उसका पुट लाना चाहिए, फिर कंप्लीट हो जाता है इनका भी। ठीक है, इसमें और कुछ ऐड करना है किसी को लेफ्ट के बारे में? एग्जाम्पल्स देने हो किसी को, या फिर कोई करंट अफेयर से लिंक करना चाहे? अभी शायद सिर्फ केरला में है ना लेफ्ट लेफ्ट। हाँ जी सर। ठीक है, ये मेंशन कर सकते थे। सर मैंने सोचा, फिर लगा कि शुड आई पुट इट और नॉट, तो फिर नहीं, मैंने ये कहा रियलिटी है ना कि करंटली अभी कहीं है ही नहीं, मतलब इट हैज ऑलमोस्ट लॉस्ट ऑल इट्स बेसिस। एक क्वेश्चन तो बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन, लेकिन वो है तो अभी तो बोलेंगे ना, इट्स स्टिल देयर, तो 3 स्टेट में है वो है, तो लेफ्ट का जब भी आएगा तो 3 स्टेट का नाम आना ही आना है, केरल, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। तो केरल बचा है तो बिल्कुल लास्ट बेसन है, तो रहेगा तो रहेगा, लिखना है। और एक और चीज बोल सकते हैं, जो लेफ्ट आया था ना, जैसे एंटी अमेरिकनिज्म एजेंडा पकड़ लो, या फिर एंटी सिविल न्यूक्लियर डील, एंटी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब एजेंडा हाँ, भी उनका नहीं रहा अभी, मतलब वो ये उनका जो इन्होंने कोर। लिखा है। वो एजेंडा है, और एक्चुअली वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए, वो मीन्स कि वो ग्रास रूट से वो ऊपर चले गए, वो ग्रास रूट्स का एजेंडा नहीं उठा रहे, जिनका हम लोग लेफ्ट या मार्क्सिस्ट के नाम पे बेस समझते हैं ना, और वो एजेंडा से पावर पॉलिटिक्स में है। और एक चीज़ और बोलता है, वो डिडंट हैव द टच विथ रियली चेंजिंग रियलिटीज ऑफ इंडिया, मीन्स वो चाइना सेंट्रिक अभी भी है, वो एंटी अमेरिकन आज भी है, वो यूएसए मीन्स सोवियत इरा का, क्या बोलते हैं इसको, कोल्ड वार इरा का आइडियोलॉजी पकड़े हुए है। बट अगर हमें इंक्लूड करना हो कि लाइक वो अभी भी कैसे रेलेवेंट है लेफ्ट, तो फिर उसमें क्या पॉइंट डाल सकता है? आई मीन कुछ तो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ना टॉपिक को। आई मीन सिर्फ वन साइडेड आंसर तो नहीं चलेगा ना। उन्होंने पहले आंसर में जो टाइप्ड है उसमें उन्होंने ढेर सारे एग्जांपल लिखे ना लास्ट पैराग्राफ में, कि अंडर द बैनर ऑफ सिप कम्युनिस्ट पार्टीज ऑल इंडिया किसान सभा हुआ है, आंगनवाड़ी आशा वर्कर का मूवमेंट हुआ है, जेंडर जस्टिस अक्रॉस केरला हुआ है, मीन्स वुमेन्स टू द वुमेन्स वॉल ऑफ जेंडर जस्टिस, तो दीज आर स्टिल रिलीवेंट। बट है कि इंडिया का लेफ्ट जो है कभी टच ही नहीं हो पाया इंडिया के रूट से, इम्पोर्टेड आइडियोलॉजी है, जो गिल्ट ऑफ हेटेरोनॉमी बोलते थे ना उनको, एम एन रॉय को, ये खुद करके बैठे हैं। लेनिन ने क्या बोला, लेनिन ने अपने यूएसएसआर के रियलिटी से चेंज किया, मॉडिफाई किया मार्क्सिज्म को, इन्होंने बस इम्पोर्टेड आइडिया को बस पकड़े हुए। आई थिंक ये क्वेश्चन 2014 या 15 में आया था, एट दैट टाइम लेफ्ट हैज बीन रूटेड आउट, तो ठीक है, अब ये लॉस्ट कर गया रिलेवेंस, चूंकि मैम के नोट्स में आना था, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका था, तो वहीं से ये नोट्स में आता रहता है बार बार एक्वेंस। ठीक है, आगे चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। ठीक है, इसको कर लो एक बार। यस। ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है ये बीजेपी के आने के पहले का है। क्वेश्चन नंबर नहीं, अभी भी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे भी लिखा हुआ है आंसर। अब वो करते हैं अपन बाद में करते हैं, पहले एक बार जो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में जो है ना वो पहले करते हैं एक बार। अच्छा, ये ठीक है। इंडिया हैज मूव्ड फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम टू वन पार्टी लेड कोलिशन। Party system in India has seen tremendous change in the at past 70 years. Zoya Hassan has called the party system to evolve in various phases with respect to changing the demands and influence of various public policies. Yeah. Rajni Kothari held that pre-1967 the Indian party system can be called as Congress system under Nehru. Congress was a grand coalition in itself. There was no challenge to the hegemonic ideology of Congress. However, with the death of Nehru and the advent of Green Revolution, party system started shifting from nationalist idea to regional aspiration.
Yogendra Yadav argued that Green Revolution led to democratic upsurge. OBCs came out of Congress system and Farmers Union supported IND, Indian National Lokdal under Devilal and Lokdal under Chaudhary Charan Singh. In Western UP emerged as regional player. This shift in party system had impacted party system in India from one party dominant system to coalition system. Moreover, with the JP movement, Samajwadi Party, Bahujan Samaj Party, Rashtriya Janata Dal United, etc. emerged to counter the grand narrative of Congress Party, especially in Hindi heartland. Thereafter, 1989 to 2014 has been called as phase of coalition government. That is जो है कहती हैं. This saw huge turbulence in instability of government policy paralysis emerged as a defining feature of Indian politics. With 2014 elections, India saw absolute majority and there was rise of one-party-led coalition. This phase has been termed as one-party dominant system. सुभाष पालेकर बोल रखे. Thomas Hansen, Saffron have held that return of BJP in full majority is not just decline of Congress but demise of Congress. Thus, Indian party system is an organic and evolving system that accommodates the rising tendency and assertive demands of people. और कुछ है? एक चीज डालनी चाहिए थी. विद्युत चक्रवर्ती हैज कंपेयर्ड द कोएलिशन सिस्टम ऑफ द वेस्ट एंड इंडिया. पता नहीं स्कोप है कि नहीं उसके लिए. उन्होंने बोला वहाँ का मोर मैच्योर कोलिशन है, हमारे यहाँ कोलिशन पावर शेयरिंग के लिए. करेक्ट. तो मतलब एक दो लाइन में लिख सकते हैं, शायद इसको डालना चाहिए इसमें. हाँ, ये लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली था मूड फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंट टू वन पार्टी लेड कोलिशन. तो एक दो एग्जाम्पल भी लिखना था. जैसे कि पहला कोलिशन में सक्सेसफुली वाजपेयी जी का था, यूपी 1-2 भी एग्जाम्पल में डालते. सेकेंड डेमोक्रेटिक अफसर जब उनका भी जाता, दलित जो बाहर आए तो वहाँ भी उनका ऑटोनोमस पार्टी बना आउट ऑफ कांग्रेस, योगेंद्र यादव वाला, तो उनका भी लिखना था. एक्चुअली एग्जाम्पल उन्होंने दिया है. साउथ इंडिया का इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया, शायद राय जब ओबीसी पॉलिटिक्स इन साउथ इंडिया में भी डीएमके तो पहले से कोलिशन में स्टेट में चल रहे थे. और इनके साथ एक स्टेटमेंट या एक पैराग्राफ 2-3 लाइन लिख सकते थे कि स्टेट में भी कोलिशन पॉलिटिक्स है, जहाँ की थोड़ा मतलब कि उसमें केरला में बोलते हैं कि मैच्योर कोलिशन चल रहा है, तो वहाँ से देखना चाहिए थोड़ा आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस. ठीक है. और लास्ट में सुहास पालेकर वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं, डिमाइस ऑफ कांग्रेस बोलते हैं, और फिर बीजेपी पार्टी सिस्टम बोलते हैं. हाँ, वही से बोलते हैं. और क्या लिखना हो तो लेटेस्ट जो महाराष्ट्र इलेक्शन में हुआ था कि 3 डिफरेंट पार्टीज केम टुगेदर इन पोस्ट पोल कोएलिशन, महागठबंधन, ये लिख सकते हैं अपन. महागाड़ी ना. हाँ, महाआघाड़ी, महाविकास आघाड़ी से. सॉरी. ठीक है. मिनिमम कॉमन एजेंडा को भी अपन मेंशन कर सकते हैं उनके लेके. और अभी ये भी तो कह सकते हैं कि प्रेजेंट में ये थोड़ा सा फैक्चुअल दे देंगे कि 2/3 मेजोरिटी एंजॉय करती है बीजेपी. कोलिशन जो है उनको पावर शेयरिंग, जो सीट्स है उनको पावर शेयरिंग नॉमिनल सेंस में दिया गया है एट सेंटर, सिंबॉलिक गेस्चर के तौर पे. और वो मतलब ठीक है ये कि इसको प्रेजेंट वाले सिस्टम को थोड़ा हम लोग भी तो अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि क्या है सिस्टम. इसको एक्चुअली जैसे दशरथ जी ने कहा, कंक्लूड हम वन पार्टी लेड कोएलिशन से नहीं करेंगे. हम जो बीजेपी सिस्टम जो थॉमस हैंसन वाला है या फिर जो सुहास पालेकर वाला है, उससे कंक्लूड कर सकते हैं कि अभी ऑपोजिशन कहीं है ही नहीं, बचा ही नहीं है. इट इज इमेंसली पावरफुल गवर्नमेंट विथ वन पार्टी सिस्टम, ऐसा बोल सकते हैं अपन कंक्लूड में. रिवाइवल ऑफ द वन पार्टी सिस्टम कह सकते हैं. करेक्ट. हाँ, ठीक है. आगे चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें या इसमें कुछ ऐड करना है किसी को? एग्जाम्पल से कुछ है नहीं यार इसमें. कुछ नहीं है, वो एग्जाम्पल ही पूरी इवोल्यूशन लिख देना है, बस वही चीज़ है शुरू से लास्ट तक. हाँ, इसमें भी आई थिंक डेफिनेशन डाल सकते हैं पार्टी का एंड हाँ सार्टोरी का और वर्क वाला पार्टी का, दोनों भी रिलेवेंट है यहाँ पे भी. बिल्कुल हो जाए. हाँ. या फिर एक और डाल सकते हैं जो लास्की वाला नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज आर लाइफ एंड ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी. वो थोड़ा डेकोरेटिव लगता है, लेकिन सार्टोरी वाला एकदम यूजफुल लगता है इस क्वेश्चन के साथ, क्योंकि करेक्ट.
पार्टी सिस्टम को दे रहा है। ठीक है, तो ये देखा अपन ने, इवोल्यूशन नहीं, क्या देखा अपन ने, वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। तो 7-8 लिखा ही नहीं है, 9 भी लिखा नहीं है, 10th देखते हैं लिखा है किसने। हाँ, इसको देख लो। दशरथ जी पढ़ रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ? हाँ, वो एक्चुअली पढ़ रहा था, माइक बंद था इसलिए हो गया। Discuss the nature of reforms of the electoral process in India and explain the further scope of reforms। यानी इलेक्टोरल प्रोसेस में रिफॉर्म करेंगे, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ चला गया। रिफॉर्म्स एज गिवन इन लक्ष्मीकांत। अच्छा, बिफोर 1996 लोअरिंग द वोटर एज, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, 21 साल से 18, डिप्यूटेशन टू इलेक्शन कमीशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अमेंडमेंट 1988, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोपोजर्स, हाँ ठीक है, बीड आउट नॉन सीरियस कैंडिडेट्स, EVM 1989, booth capturing, EPIC, electoral photo identity card, TN session, ER after 1996, of 1996, ऐसा कुछ खास हुआ। Listing of names of candidates, disqualification for insulting the National Honor Act, prohibition on the sale of liquor, number of proposers, death of a candidate, limit for by-elections, holiday to employees on the polling day, distance restricted to 2 constituencies, prohibition of arms, effective campaigning period reduced. After 1996, requisitioning staff for election duty, voting through postal ballot, facility to opt out to vote through proxy, declaration of criminal antecedents, etc. for candidates, changes in Rajya Sabha election, ये भी लिख देते, नोटा, वीवीपैट, ये तो मतलब कि ठीक है। और भी है, अच्छा, ये वो, हाँ, changing Rajya Sabha elections, exemptions of traveling expenditures, free study of electoral rolls, party entitled to accept contribution, allocation of time on electronic media, introduction of braille signage features in EVM. Since 2010 BC, restrictions imposed on exit polls, time limit for submitting a case for disqualification, increase in security deposit, appellate authority within the district, voting rights to citizens of India living abroad, online enrollment in the electoral roll, introduction of note option, VVPAT, person in jail or police custody can contest elections immediate, disqualification of immediate disqualification of convicted MPs and MLAs, sealing on election expenditure increase, photos of candidates on EVM and ballot papers, funding reforms, most recent reforms such as sealing on cash donations lowered, cap on corporate contributions lifted, introductions of electoral bonds, foreign funding क्या है, about nature, mixed nature of reforms हुआ है, led by all legislative, judiciary and election commission. It is a mix of progressive and regressive nature, जैसे कि वो ना regressive में बोलते इलेक्टोरल बॉन्ड थोड़ा सा लूज यूज कर दिया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिलैक्स कर दिया, स्लो रिफॉर्म्स, लेट रिफॉर्म्स आर देयर, नीड फॉर substantive reforms proposed by election commission in 2016 covering all dimensions है। तो ये तो क्वेश्चन आया होता है डायरेक्ट, means constitutional protection, constitutional reforms, protection to all members of commission, budgetary reforms, budget of the commission to be charged independent secretariat for the commission, sorry, budget of the commission to be charged and consolidated fund with, अभी तो भी है शायद, independent secretariat for the commission, use of common electoral rolls for वो बोल रहा ना assembly लोकसभा पंचायत, making of false statements or declaration before authority punishable, empowering the district election officer to requisition staff, restricting the number of seats from which one may contest to 1, making bribery in elections a cognizable offence, deregistration of political parties to election commission को दे देना चाहिए, limit the number of star campaigners, अभी शायद 40 है, इन्होंने भी कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ लिख दिया। क्या रखना है, इसमें इतना ज्यादा कमेटी के हो नाम भी आ सकते थे यार, कुछ कुछ, हाँ नाम तो क्या सकते हैं, जैसे वोहरा कमेटी हो गया, तारकुंडे कमेटी हो गया, इंद्रजीत गुप्ता, दिनेश गोस्वामी, कमेटी हो गया, वो पॉलिटिकल फंडिंग गवर्नमेंट फंडिंग के लिए है ना, हाँ ये सब नाम आ सकते हैं, सेकेंड आरसी आ सकता है, वो सब नाम से नंबर ज्यादा उठ जाएंगे ना, मतलब पर्टिकुलर नाम देख के आदमी बोलेगा कि हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, जीएस में भी वो नाम जाते हैं, सही कह रहे हैं आप, जनरलाइज लग रहा है आंसर एक्चुअली थोड़ा सा। किसी को पता हो तो कमिटी एंड उनका कुछ मेन कंट्रीब्यूशन बता दो ना, टाइप कर लेता हूँ। वोरा में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस है, इंद्रजीत ने बोला पार्शियल फंडिंग बोला है, वो क्या नाम है, गोस्वामी ने बोला पार्शियल स्टेट फंडिंग है, जितना याद आ रहा दिमाग से वही बोल रहा।
तो हाँ सही। गोस्वामी ने बोला है कि फुल स्टेट फंडिंग करना चाहिए, और देखता है, मैं बता रहा हूँ कहीं हाँ, होगा। फंडिंग को ना, वो फंडिंग इन काइंड करना है, इन कैश नहीं करना है, ये भी बोला उन्होंने, जो भी बता रहे आप उसी में। कारकुंडे ने बोला है कि जो मीडिया यूज करते हैं शुड बी अंडर लेजिस्लेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ताकि उसका मीडिया बायसनेस को संभाला जा सके। और वही कोलिजियम सिस्टम बोला था सीईसी के लिए गोस्वामी कमेटी ने। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी बोला है। हाँ सही। These are the things actually. हाँ, इसमें ना आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल भी डालना जरूरी है ये आंसर्स में आईजीपी थोड़ा में। सा तो टेक्निकल बनाने के लिए। हाँ, आर्टिकल 3 to 4, 3 to 5, 3 to 6 से तो लिखने हैं। और उसमें एसटीसी ना, सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल कुछ था इसमें। ये सुपरविजन में कुछ भूल गया। हाँ, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल 324 बोलते हैं। हाँ, एक और है कि लॉ कमीशन की 170th रिपोर्ट ने भी बोला था पार्शियल फंडिंग का। सन्नाटा क्यों है भाई? ये सन्नाटा स्कीपर की तरफ से। कौन सा क्वेश्चन करना है नेक्स्ट? जो सोल्व ढो सर। जो लिखा ही नहीं है, कोई भी सॉल्व नहीं है, अब तो खुद ही करना है। अच्छा, तो फिर तो हालत सब खराब हो जाती है। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए अभी। चलो, टाइमलेस विजडम बन जाएगा फिर। सर ये मैंने लिखा है ना 3rd नंबर, ये रह गया अभी, इसको कर। हाँ, उसको उठाया जाए। आप ही पढ़िएगा और एनालाइज भी कीजिएगा, बेहतर होगा थोड़ा। ठीक है। सन्नाटा भी हो गया। भूपन दे रहा है ग्रुप में, स्क्रीन नहीं दिख सर रहा। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि अकाउंट फॉर द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड असेस देयर रोल इन कंटेम्पररी टाइम्स, 15 मार्कर का। तो मैंने स्टार्ट किया कि इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम हैज प्रोवाइडेड इनफ स्पेस फॉर रीजनल एस्पिरेशंस टू कल्मिनेट इनटू पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ सिस्टमिक रेलेवेंस। ये सार्ट्रे का जो पॉइंट था। इन पर्टिकुलर आफ्टर 1967 ब्रेकडाउन ऑफ कांग्रेस ब्रैकेट में इंडिया हैज विटनेस राइज ऑफ रीजनल पार्टीज। सुभाष पालासीकर।
फिर ई श्रीधरन साहब कह रहे हैं कि सजेस्ट 2 मेजर फैक्टर्स फॉर देयर राइज, कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स लाइक delinking of parliamentary and state legislative elections, thereby leading to mobilization upon local issues. तो local issues, फिर ड्यू टू फेडरल नेचर ऑफ रीजनल, ड्यू टू फेडरल नेचर हमारे यहाँ पे इंडिया में रीजनल पार्टीज आर इन ग्रेटर कॉन्टेक्ट विद द पीपल, तो उनका डायरेक्ट कनेक्शन. फिर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, और उसी का एक और था कि फॉर्मेशन ऑफ डोमिनेंट कास्ट, जैसे कि मजगर जहाँ अपन देखते हैं. फिर दूसरा फैक्टर जो ई श्रीधरन साहब कह रहे हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक द ग्रीन रिवॉल्यूशंस पुश टू ओबीसी, और डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ड्यू टू इट्स पॉलिटिसाइजेशन, वो पॉलिटिसाइजेशन हुआ रिलीजन का. फिर कि कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल्स राइट एंड लिबर्टी, जैसे ST/SC मूवमेंट हुआ, दलित मूवमेंट हुआ, एंड ऑल्सो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन 1975, जैसे कि जनता पार्टी और फिर उसका सब्सिक्वेंट रीजनल जनता दल बने, जैसे जनता दल यूनाइटेड वगैरह. फिर हाउएवर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइज ऑफ रीजनल पार्टीज आर मिक्स्ड, जैसे पहला इन पॉजिटिव आउटकम्स लाइक डेमोक्रेसी बिकमिंग मोर रिप्रेजेंटेटिव, फिर बार्गेनिंग फेडरलिज्म, फिर ग्रेटर रोल ऑफ स्टेट्स इन फॉरेन पॉलिसी, जैसे तमिलनाडु वगैरह हमारे, फिर एंड डोमिनेंस ऑफ रीजनल इश्यूज ओवर द वेव ऑफ नेशनल इश्यूज जैसे. फिर ऑल्सो एंड नेगेटिव आउटकम्स लाइक, जैसे नेगेटिव आउटकम्स थे ये कोएलिशन कल्चर के कारण थे, कि पॉलिसी पैरालिसिस, रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, एंड पॉलिटाइजेशन ऑफ पोस्ट ऑफ स्पीकर, ऑल ड्यू टू लैक ऑफ हेल्दी कोएलिशन कल्चर. फिर क्वेश्चन में दूसरा पार्ट थे कि कंटेम्पररी टाइम्स में क्या है. अब 15 मार्कर ही था इसलिए कम लिखा, कि इन कंटेम्पररी टाइम्स रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैव शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग ट्रेडिशनली कास्ट बेस्ड टू डेमोक्रेटिक मास बेस्ड, जो पॉल ब्रास साहब कह रहे हैं. फिर फॉर एग्जांपल द कॉल ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस इन 2020 बिहार इलेक्शन बाय द राष्ट्रीय जनता दल RJD. और दूसरा पॉइंट है कि देयर पोजीशन इन स्टेट में रिमेन ऑफ एन आउटसाइडर, जैसे वेरी लेस रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली within their own state, but can be coalition partners at the center. ये एंड्रू हॉट और C मणिकंदन साहब कह रहे हैं. तो फिर मैंने एग्जांपल से सब्सटेंटिएट करा कि फॉर एग्जांपल लोक जनशक्ति पार्टी विथ लेस रिप्रेजेंटेशन इन बिहार was still coalition partner in NDA second at the union at the central level. ठीक है, this is it. आपने तो पहले लाइन में सारटोरी को क्या जबरदस्त अडेप्ट किया है इधर से उधर, वो अच्छा यूज था. और आपने स्कॉलर को जो ब्रैकेट में डाल के लिखा है ना, वो भी बढ़िया 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 मतलब यूज है. सर एक पॉइंट मेरे मन में आ रहा था पर मैं लिखा नहीं, कि जैसे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से स्टार्ट हो रहा है ये, तो मैं लिखना चाह रहा था कि इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइजेस स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज. वो ये भी चलता अच्छा है point पार्टी लगा, सिस्टम में. institutional ये पार्टी सिस्टम में कहीं हम लोग नोट्स में भी तो नहीं पढ़ते ना, जो भी आपने लिखा वो ठीक है, ताकि वो इलेक्शन कमीशन का इसीलिए रोल मैंने नहीं उसको आता. ड्रॉप कर दिया. हाँ, वो सही किया. हाँ, वो GS2 जैसा हो जाता फिर, इसलिए नहीं लिखा. Actually, election commission of India does not play a role in the formation or running of the working of the party system in India. Party, yes. Add more points to this. हाँ, तो राइज में ठीक है सब है. आप OBC भी लिख दिए, पहले डेमोक्रेटिक स्पेस लिख दिए, फिर OBC लिख दिए, फर्स्ट अपसर्ज हो गया, सेकंड अपसर्ज भी हो गया, मंडलाइजेशन कमंडलाइजेशन भी हो गया, फिर ऑटोनॉमी में दलित सेकंड अपसर्ज भी हो गया. फिर नेशनल में होने के थोड़ा सा एक पैराग्राफ है, एक डायमेंशन और जोड़ सकते हैं ना, स्टेट में भी है. तो ये सब हो गया राइज. स्टेट में रीजनल पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज का जो है गवर्नमेंट ऑटोनोमस गवर्नमेंट है, मीन्स एकदम DMK IDMK ऑन देयर ओन. तो ये सब वहाँ के लिए डोमिनेंट पार्टी हो जाते हैं. दे प्ले डोमिनेंट रोल इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स. और नेशनल पार्टी सबऑर्डिनेट रोल में आ जाती है, मतलब कि ये कोलिशन पार्टनर.
और देयर रोल इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स वही है कि स्टेट में ज़्यादा है और सेंटर में तो सुहास पालेकर बोल रहे हैं कि फोर्थ बीजेपी सिस्टम है, तो थोड़ा तो डोमिनेंट पार्टी लेड कोलिशन चल रहा है। सही है, आपने बढ़िया एग्जाम्पल दिया, सब कुछ अच्छा, जो भी लिखा अच्छा है, एक दो और ऐड हो जाता बस। ऑल राइट, मैंने पॉइंट यहाँ पे टाइप करा है कि डोमिनेंट रोल ऑफ रीजनल पार्टीज इन स्टेट्स लाइक डीएमके। इसको और मैं चेंज कर देता हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही। एनीवन, एम आई ऑडिबल? हाँ। दशम सर नहीं है क्या? चलेगा क्या? नहीं है, स्क्रीन तो उन्हीं का दिख रहा है। एक्चुअली अब क्वेश्चन अनसोल्व्ड है ना, स्क्रीन चला गया, आप चले गए। जी नहीं वो तो है, स्क्रीन उनका चला गया। हाँ, आप आ गए हैं मतलब। तो आगे क्या करेंगे? आगे के अनसोल्व्ड क्वेश्चंस हैं। यार एक क्वेश्चन है, चेंजिंग इन सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेचर है, क्वेश्चन आया था एक बार, इसमें कैसे आंसर हाँ, लिखेंगे प्रोफाइल करके? लाइक आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट इट, लाइक आपका व्यूज कैसा होगा, कैसे बनाओगे उसको? मेरा आंसर तो जीएस टाइप का बन जाएगा, अगर आई वाज थिंकिंग लाइक ऐसा खास डेटा है नहीं मेरे पास उसको। डाटा तो थोड़ा इन जो नोट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे शायद वहाँ है, किन्हीं ने स्टडी भी किया है इसको प्रॉपरली। वो एक चैटर्जी क्या नाम है, आई थिंक विमेन का क्वेश्चन था कि 14% वाला है और कुछ है, लेकिन कुछ खास मुझे मिला नहीं था। आप हाँ, ऐसे तो स्ट्रक्चर है कि जो भी है, मैंने प्रोफाइल लेजिस्लेटर ऐसा है कि पहला वाला मतलब कि अर्बन लीडर्स का डोमिनेशन था, लॉयर्स बैरिस्टर्स का था, नेशनल मूवमेंट वाले लीडर्स थे। और उसके बाद जब रीजनल पार्टीज का असर्शन हुआ तो फिर सोसाइटी पीजेंट्स लीडर का मैंने मतलब रूरल बैकग्राउंड का रोल बढ़ा, एग्रेरियन बैकग्राउंड से रोल बढ़ा। फिर उसके बाद वो विथ रेस्पेक्ट टू ओबीसी भी उनका रिजर्वेशन के थ्रू, हाँ रिजर्वेशन के थ्रू रुकिए, लेट मी कंप्लीट, आई विल लेट यू टॉक। रिजर्वेशन के थ्रू SC ST को भी रिप्रेजेंटेशन मिला, अदरवाइज उनको मतलब दिखता है कि वो नहीं मिलता यदि नहीं रहता, तो फिर है कि OBC को भी मिला, राइज बढ़ा। उसके बाद बाई प्रोफेशन जाए, ये तो सोशल था, बाई प्रोफेशन जाए तो पहले बैरिस्टर थे, फिर एग्रेरियन आए, फिर अब आज के दिन में सोशल वर्कर ज़्यादा है, मतलब जिनका प्रोफेशन है। एजुकेशनल बैकग्राउंड में पहले लॉयर थे, मैंने पढ़े हाईली एजुकेटेड थे, आजकल भी कुछ डाटा है भूल गया कि अब PhD ग्रेजुएट कितना है। फिर एज वाइज भी देखते हैं तो लास्ट में भागते भागते लिख दो प्रेजेंट एज 54 ईयर्स है, ऐसे वैसे। वुमेन का भी एक एक्सपेक्ट देखते हैं कि वुमेन का क्या है, और लास्ट में उसको जोड़ देंगे कि
ये मैंने जो भी है सिस्टमेटिक फैक्टर जैसे पॉलिटिकल असर्शन होता गया मीन्स टू सिस्टम अप्रोच आवर इलेक्टोरल जो भी है लाइक प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेटर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द असर्शन ऑफ डिफरेंट सेक्शन इन आवर पॉलिटी ऑफ आवर कंट्री। ये तो जीएस टाइप का हो गया ना। हाँ वैसे ही बनता है आंसर, लेकिन ठीक है मतलब फेजेस के हिसाब से कर देंगे तो बेटर हो जाएगा। लाइक हाँ ये कहीं था, मैंने फेजेस भी देखे थे कहीं। फेजेस के हिसाब से लाइक 50 हो गया, डेमोक्रेटिक अपसर्ज हो गया, फिर वो अच्छा मतलब ये आइडेंटिटी इन्होंने पॉलिटिक्स हो शंकर एंड रोड्रिक्स ने स्टडी किया है फेजेस में। हाँ हाँ तो अच्छा मैं नोटशीट देख के बता रहा हूँ, इसमें बोलते हैं कि प्रोफाइल्स गिव्स द इंडिकेशन ऑफ सोसाइटी इटसेल्फ। और एक जैसे हम लोग लेजिस्लेटर लिख रहे हैं ना, लेजिस्लेचर, तो हम लोग एमपी पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर भी देखेंगे। तो लिखा हुआ है नो डिफरेंस इन प्रोफाइल ऑफ एमपीज एंड एमएलएज। तो फिर है कि नो डिफरेंस इन अपर हाउस एज वेल एज लोअर हाउस, ये भी लिखेंगे। पीटर सोबर, पीटर ड्रंक, शंकर एंड रोड्रिक्स ने 4-5 फेजेज लिखे उन्होंने। उसमें 3 फेजेज दिए। फर्स्ट पेज में था कि टिल 67 जो कांग्रेस डोमिनेंट था, ब्राह्मण डोमिनेटेड, माइनॉरिटी ओबीसी वुमेन अंडर रिप्रेजेंटेड, SC ST ओनली बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन देयर, मोस्ट ऑफ देम ग्रेजुएट, एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग SC भी फॉरेन एजुकेटेड थे, जैसे अम्बेडकर साहब को भी ले सकते हैं। लॉयर्स वेयर मोर। फेज 2 में 67 से 1989 है, ये फेज ऑफ ट्रांजिशन बोलते वो। ये हो गया कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के कारण, ग्रास रूट मूवमेंट के कारण, ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, ओबीसी का बढ़ा, फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज, एग्रीकल्चरलिस्ट आ गए, पॉलिटिक्स जो है फुल टाइम प्रोफेशन बन गया। उस समय तक सर्विस था ना। यूथ इंट्रोड्यूस टू जेपी मूवमेंट एंड संजय गांधी यूथ कांग्रेस, वुमेन भी आया, माइनॉरिटी भी आया, बट ये स्टिल रिप्रेजेंटेड है। फेज 3 में देखते हैं 1989 से आगे मैंने प्लेबियनाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जोगिंदर यादव बोलते हैं, सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज, ओबीसी एग्रीकल्चरल डोमिनेट कर रहे हैं, वुमेन माइनॉरिटी अंडर रिप्रेजेंटेड अभी भी है, प्रेजेंस ऑफ पीपल ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड बढ़ गया, क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स। ये हो गया। एज फैक्टर भी दे सकते हैं, सोशल कंपोजिशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, एज फैक्टर, जेंडर बायसनेस, इतना काफी है। और क्या लिखेंगे, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स लास्ट में हो गया। हाँ वो अभी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का है ना डेटा 233 करके क्रिमिनल उसमें है करके, और आई थिंक नए इस लोकसभा में, और पिछले में था आई थिंक 187 है करके, तो वो भी कोड कर सकते हैं। जी जी। हाँ जैसे 78 वुमेन एमपी है, ऐसे डाटा तो लास्ट वाला पीआरएस वाला जाता है। 78 वुमेन एमपी है, 43% क्रिमिनलाइजेशन है, 29% हीनियस क्राइम है, 54 ईयर्स द एवरेज एज है। कभी कभी ये भी लिखा जाता है कि उसमें न्यू कमर्स कितने हैं, कितने याद है तो है, नहीं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग। आई थिंक हाँ उसमें क्रिमिनलाइजेशन ऑफ यंगस्टर पॉलिटिक्स का में क्वेश्चन आएगा, न्यूकमर्स। डायमेंशन से अगर पूछा तो। क्या सर? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया ना, उस डायमेंशन से शायद पूछे, अगर पूछे तो अभी करंट सिनेरियो से। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक्चुअली जब रीजनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ ना, तो रीजनल पार्टीज का डोमिनेंस आया ना, तो विनेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स पे फोकस करने लगे, क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स पे नहीं। और वो विनेबिलिटी के कारण और पावर शेयरिंग के कारण मनी मसल पावर इंक्रीज हुआ, तो ये लिख सकते हैं एक। लेकिन ये निगेटिव फैक्टर है, और इसके कारण क्वालिटी ऑफ डिबेट भी डाउनग्रेड हुआ है, क्वालिटी ऑफ पार्लियामेंट पे थोड़ा लेजिटिमेसी पे भी डाउट होता है, लेजिस्लेशन मेकिंग पे भी। मैम आप कुछ बोल रही थी? नथिंग सर। ओके। ये क्वेश्चन 2019 में आया, GS2 में आया था कि क्वालिटेटिव डिबेट इन पार्लियामेंट इज डिक्रीजिंग। तो उसमें क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, फिर लेस वर्किंग आवर्स, फिर है कि स्क्रूटनी का रूल घट गया, मतलब पार्लियामेंट को रेफर नहीं किया जाता है, ये सब है। फिर डिफेक्शन का इश्यू हो गया, डिफेक्शन भी उसमें ऑफिस ऑफ द व्हिप भी इश्यू है। ये सब के कारण थोड़ा डिबेट डिस्कशन इनइफेक्टिव टाइप का हो रहा था, ये भी लिख सकते हैं। और कोई दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं फिर। ये तो ठीक हो गया, मतलब हाँ समझ गया कि लाइक फ्लो कैसा बनेगा कोई भी क्वेश्चन का। रॉड्रिगेज है ना नाम, आई रिमेम्बर, लाइक रॉड्रिगेज से कोट करना पड़ेगा ना फेस को चालू करने। शंकर एंड रोड्रिग्स। हाँ हाँ हाँ, शंकर एंड रॉड्रिगेज।
ठीक है, आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन, यदि परमिशन हो तो, क्योंकि हाँ, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन दोज अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। अच्छा, ये तो क्वेश्चन था, कोई लिखे हैं क्या इनको, जो अभी बोले इनको अपडेट नहीं किया? ये तो क्वेश्चन इधर चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेटर, तो सोशो इकोनॉमिक में भी देखेंगे। आप थोड़ा क्या है कि इसे भी देख सकते हैं ना कि इंटरप्रेन्योर्स आर आल्सो कम बीइंग मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा एज वेल, है ना। और इकोनॉमिक में भी देखिए, जैसे प्रोफेशन वाइज भी देख सकते हैं, एग्रीकल्चरलिस्ट है और ये सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल वर्कर्स है। सर अगर क्वेश्चन थोड़ा जल्दी अगर आप लोग डाल देते तो हो सकता है कि नंबर ऑफ आंसर्स ज़्यादा हों, क्योंकि मतलब जो स्टार्ट कर रहे हैं और जो नए हैं डेफिनेटली उनके लिए तो डिफिकल्ट है एक दिन में 12 क्वेश्चन। ये पर डे के हिसाब से क्वेश्चन डाला जाता है। कल शायद सोशल मूवमेंट का डाला जाएगा। एक्चुअली 3 days ago वी वर डिस्कसिंग दिस टॉपिक्स वन डे टाइप, एक्चुअली दिस आर लैगिंग। तो अब ना प्लेटो भी आएगा, जब ये कल आज सोशल मूवमेंट डाला जाएगा, कल सोशल मूवमेंट डिस्कस होगा। आफ्टर दैट आई थिंक प्लेटो अरिस्टोटल विल कम एज क्वेश्चंस। तो ऐसे हो रहा है, एक दिन का टाइम मिलता है मैम। सर वो मैं कह रही हूँ कि थोड़ा पहले मतलब आज 1 बजे दोपहर में डाला गया था, तो सुबह में अच्छा ही अच्छा, I got it. Actually in private group it was uploaded I think in night itself, but in the open group it was put on in the mid noon I think. या ये दृश्यम सर करते, ये उनके हाथ में है। Even he actually he is able to do, otherwise ये वही करते हैं, वही कर सकते हैं, ऐसा है। इन्हीं की लीडरशिप में ये सब चल रहा है। वो मेडागास्कर वाले स्कीपर हैं, स्कीपर। रिकॉर्डिंग में नहीं है ना? अरे रिकॉर्डिंग में है सब कुछ। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। दृश्यम सर, दृश्यम सर, और कौन सा क्वेश्चन बचा है? अच्छा, ये प्रेशर ग्रुप कहाँ से आ रहा है? ये प्रेशर ग्रुप, अच्छा ये तो पेपर 2 सेक्शन 1 का क्वेश्चन है। प्रेशर ग्रुप है, फिर इंडियन डेमोक्रेसी बिगन यूनिक एडवांटेज ऑफ एफिशिएंट सिविल सर्विस एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। या ये तो है, ये कहाँ से आया? एक क्वेश्चन था क्या? ये बहुत पुराना क्वेश्चन लग रहा है। ये होगा 2010-12 में आते होंगे या 8-7 में, ऐसे लग रहा है। ये सिविल सर्विस तो GS2 पे इस साल आएगा, वो मिशन कर्मयोगी ये सब, लेकिन यहाँ तो नहीं है, चांसेस नहीं है। नहीं आने के तो चांसेस हैं, वो आ ही जाते हैं। ये बहुत पुराना है, अब टोन नहीं रहा यूपीएससी का ऐसे क्वेश्चन पूछना। आई थिंक दिस इज टाइम टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी फ्रूटलेस। ओके, शुड आई स्टॉप इट? उन्होंने स्क्रीन भी बंद कर दिया। हाँ। ओके।